Good morning, class. Now let's start the next topic of the chapter, that is types of algebraic expression and variables or constants of algebraic expression. Now under the types of algebraic expression will come types of expressions like monomial, binomial, trinomial, quadrinomial, polynomial. This depends upon the number of terms in the algebraic expression. But before that, we should understand properly that what basically are algebraic expression, variable and constants. Although in my previous lecture I have explained, let's revise it once again. So first comes variable. What is a variable? It is simply a symbol which is used to represent a number in an expression or equation. That means if we take example 2x plus 3p plus 10y. Now this 2, 3 and 10, they are numerical values. But with them, we are also having some alphabets like x, p, y. They can be any alphabets. These alphabets only along with this numerical value are known as variables, which represent actually a number. Why it is written that it represents a number in an expression or equation? Because if I'll only say 2 plus 3p, so it will be wrong, because x has its own significance in this expression. Okay, so what are variables? They are simply symbol which is used to represent a number in an expression or equation. Now these variables are only known as literals. In many books, instead of variable you will find literals, or the statement can be this literal has this value, so it simply means variable. Now comes the next term, constant. Its definition goes like this: symbol with fixed numerical value is known as constant. Why it is written fixed numerical value? See, like 1, minus 10 or 2 by 3, they all are having fixed value. You must be thinking कि 1 और minus 10 की तो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन क्या 2 by 3 तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है. बट अगर मैं 2 by 3 को फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 2 by 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6 बार. दैट मीन्स एक तरह से फिक्स वैल्यू तो आ गई. अब वो डेफिनेट है कि नॉन डेफिनेट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम एक फिक्स वैल्यू के आसपास तो हैं. दैट इज वाई सिंपली कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? अ सिंबल विद अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट. नाउ algebraic expression, combination of constants and variables with mathematical operator is called algebraic expression. Now see, x, y, these are what? Variables. 5, 6, these are what? Constant. So combination of these variables and constants together make up what? An algebraic expression. Now comes a next topic, that is types of algebraic expression. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन योर स्कूल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, तो इसको बहुत ध्यान से समझना. नाउ सी, यू कैन सी हियर आर मेनी नेम्स रिटन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एसेट्रा. ये सब बेसिकली क्या है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हैं टाइप्स हैं. कैसे हैं समझते हैं. लाइक द फर्स्ट वन, मोनोमियल. नाउ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. मतलब कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो, वो क्या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 3, ये एक अकेली टर्म है, 3 के साथ कोई नहीं है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x 5x² y -6abc 3/2. ये सब अलग अलग है, दीज आर नॉट टुगेदर, इसलिए मैंने कॉमा लगाया. जैसे अगर मैं बात करूँ 3 की, ये एक सिंगल टर्म है, 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है ना, इट इज अलोन. 2x मैंने ले लिया, 2x एक सिंगल टर्म है, ना इसमें कुछ प्लस हो रहा है ना कुछ माइनस हो रहा है, नॉर्मल एक सिंगल टर्म है. 5x² ये भी एक सिंगल टर्म है. नाउ वन थिंग, सिंगल टर्म से आप ये मत समझना कि 5x² है तो केवल 5x होना चाहिए. नो, वेरिएबल्स कितने भी हों लेकिन वो टर्म एक अकेली होनी चाहिए. इस टर्म के साथ अगर मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, लाइक प्लस माइनस, अगर मैं इसके साथ कुछ करूँ, तब वो मोनोमियल नहीं कहलाएगा. मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म. ओके, दैट मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. नेक्स्ट कम्स बाइनोमियल. अब बस इसके आगे एक एक नंबर एक्सीड करते जाना है. Monomial मतलब 1, binomial as the name suggests containing 2 term. That means
एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3। नाउ सी, x अगर मैं केवल बात करता x की तो ये एक मोनोमियल है, बट x के साथ एडिशन में क्या है 3, दैट मीन्स 2 टर्म्स हो गई, सो इट इज़ अ बाइनोमियल टर्म। सेकेंड एग्जाम्पल 5 माइनस 2x, ये भी एक बाइनोमियल है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक से a स्क्वायर माइनस 2abc, इट इज़ ऑल्सो अ बाइनोमियल टर्म क्योंकि 2 टर्म्स हैं। देन कम्स ट्राइनोमियल, एज द नेम सजेस्ट, ट्राई मतलब 3। Any algebraic expression containing 3 terms is called trinomial. For example, एक अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा तो आप बाकी खुद ही फॉर्म कर सकते हो। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, तो कोई भी 3 टर्म्स ले लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल 2x माइनस वाई प्लस 3, 1 2 एंड 3, ट्राइनोमियल हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स क्यूब, यहाँ भी 3 टर्म्स हो गई, ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया। Now comes quadrinomial. So any algebraic expression containing 4 terms is called quadrinomial. मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, it is known as quadrinomial. For example, like a cube plus b cube plus c cube plus 3abc, 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, ये हो गए quadrinomial. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, 1 2 3 4, ये भी क्या है क्वाड्रिनोमियल। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर मैं सिर्फ इतना लिखा है, ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। ए बी प्लस बी सी है बाइनोमियल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ट्राइनोमियल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी क्वाड्रिनोमियल। दैट मीन्स हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, मतलब दोनों के बीच में कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल कैसे पता चलता है, अगर इनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा है। देन कम्स द लास्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल में क्या लिखा है, 2 और मोर टर्म्स, दैट मीन्स एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। 2 और मोर मतलब, अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि 2 और मोर, तो 2 और मोर में तो ये सब आते हैं, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी, क्वाड्रिनोमियल भी, तो यस दिस इज ओनली द आंसर। ये जो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, दैट एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लोअर लिमिट कितना है, मतलब मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, 2 से कितनी भी ज़्यादा हो सकती हैं तो वो कहलाएंगे क्या, योर पॉलिनोमियल। So we can say that all binomial, trinomial and quadrinomial, they are polynomials only. Now let's start exercise. Now our next question is, the terms in the expression are, मतलब ये कोई एक algebraic expression दिया है और अब पूछ रहा है कि इसमें terms जो हैं वो क्या होनी चाहिए। So very simple, terms क्या होंगी, 4y² और -5x, यही अपने आप में टर्म है। भाई ये टर्म्स मिलकर तो क्या algebraic expression बना रही हैं, so answer will be what, 4y² and -5x. These will be the terms in the expression. Next question is, identify the variable and constant. एक इक्वेशन दी है p is equal to 4s. Now we need to identify that what are variable and what are constant. Very simple. Constant क्या होते हैं? I just told you that constant are those विच हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, 4 की। भाई पी और एस की हमको कोई प्रॉपर वैल्यू थोड़ी ना पता है, बट 4 की एक फिक्स वैल्यू पता है कि 4 ही है, ना वो 5 है ना वो 3 है। दैट मीन्स व्हाट विल बी अ कांस्टेंट, 4। और पी और एस क्या है, अल्फाबेटिकली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर व्हाट, वेरिएबल्स। सो वी कैन से दैट 4 इज अ कांस्टेंट एंड पी एंड एस आर variables. Now next question is, write the following in exponential forms, a into a into a into a and 10 times। मतलब a कितनी बार है, 10 times। वेरी सिंपल, व्हाट आई टोल्ड यू कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a टू द पावर n, जहाँ पे a होता है कोई भी वेरिएबल या मैं कहता हूँ कांस्टेंट, और n क्या होती है, पावर, मतलब कितने टाइम वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है।
This I have already explained you in exponents and powers lecture. You can see it in my maths playlist. Okay, so a into a into a 10 times. इसका exponential form क्या होगा? a to the power 10. Very simple. See the next one. 13 into p 7 times into q 12 times. अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये है कि 13 तो एक सिंगल है, लेकिन ये जो p है ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और जो q है वो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? वेरी सिंपल. 13 इंटू पी कितने? 7 टाइम्स, तो p टू द पावर 7 इंटू q 12 टाइम्स q टू द पावर 12. So this will be a final expression, that is 13p7q12. Next question is write in expanded form. Expanded form मतलब है ये है जस्ट वाइस वर्सा जो ऊपर कर रहे थे. यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म था, आपको इसका एक्सपोनेंशियल दिया था. अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया और आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. तो सी ए स्क्वायर बी पावर 5. ए स्क्वायर मतलब ए कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स. ए इंटू ए and b5. So 1 2 3 4 and 5. Done. Next 30x square y cube z4. 30 कितने टाइम्स हैं? सिंगल. इंटू एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम्स x इंटू एक्स. y हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. y इंटू वाई इंटू वाई. z हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. 1 2 3 4. जिसकी जितनी पावर है उसको उतने टाइम्स एक्सपेंड करना है. सिंपल. नाउ आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल. वेरी इजी. लेट्स सी. ए स्क्वायर. अब ए स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी अ मोनोमियल. वाई? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इट इज कंटेनिंग ओनली वन टर्म, सो इट विल बी मोनोमियल. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने में एल्जेब्रिक टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, सो इट विल बी व्हाट? बाइनोमियल. 7 प्लस 5. नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है. 7 प्लस 5 विल इट बी अ बाइनोमियल? नो. क्या लिखा है? 7 प्लस 5. अगर 7 प्लस 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12. तो 12 तो एक सिंगल टर्म है ना, सो इट विल बी व्हाट? इट विल ऑल्सो बी अ मोनोमियल. फोर्थ वन ए बी सी, ये भी एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल. हाँ, अगर इसी ए बी सी में मैं ये लिख देता ए बी सी प्लस एक्स वाई, तब ये हो जाता बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म्स हैं. प्लस सपोज जेड, ये हो जाता ट्राइनोमियल, 3 है. इसी में जितना प्लस ऐड करता जाता मतलब टर्म्स बढ़ाता जाता. इस तरीके से अगर टर्म्स बढ़ाता जाता सो उस अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती जाती. नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz 1 2 3 4. तो वेरी इजी. ये क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल. 4 टर्म्स हैं, क्वाड्रिनोमियल. अब इसी में अगर ये पूछ लेता कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है. तो सभी मोनोमियल्स को हटा के दैट मीन्स योर सेकेंड वन एंड योर फिफ्थ वन ओनली दे आर पॉलिनोमियल्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज राइट ऑल टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. 3x ये क्वेश्चन दिया एंड सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4. अब हमको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं. सो फर्स्ट वन राइट ऑल टर्म्स. तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? सिंगल ही टर्म है. तो इसकी टर्म क्या होगी? ये खुद y, क्योंकि भाई यहाँ पे टर्म्स कितनी दी हैं? इसमें सिंगल टर्म है, यही एक अपने आप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. सो आंसर विल बी 3x. नेक्स्ट वन सी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4. येस. अब अगर यहाँ की बात करके यहाँ कितनी एल्जेब्रिक राइट ऑल द टर्म्स, तो यहाँ पे टर्म्स क्या होंगी? सबसे पहली टर्म होगी 2x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हुई. सेकेंड टर्म क्या होगी? वाई स्क्वायर. थर्ड टर्म माइनस 3xy एंड फोर्थ टर्म विल बी 4. ये कहलाएंगी टर्म्स. मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर से जब 2 टर्म्स डिस्टिंग्विश हो, मतलब सी ये प्लस है, अगर ये प्लस नहीं रहता तो ये मैं इसको पूरा क्या पढ़ता 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन प्लस है मतलब ये एक सिंगल टर्म है, वाई स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, माइनस 3xy एक सिंगल टर्म है, 4 एक सिंगल टर्म है.
तो जब दो टर्म्स किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर दो टर्म्स को हमेशा अलग करता है और ये बताता है कि ये अपने आप में एक इंडिविजुअल वैल्यू रखती है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। बट वन थिंग, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी मैंने कहा कि दो टर्म्स को किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन अलग करता है, वो होता है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो इस तरह से वाई स्क्वायर और 3xy को जो अलग कर रहा है वो है माइनस साइन। भाई ये बता रहे हैं ना कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, बट वाइल आई वॉज राइटिंग द टर्म्स आई हैव रिटन -3xy, तो ये माइनस साइन क्यों है? सो सी बेटा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसके साइन के अकॉर्डिंग ही चलती है। मतलब जब हम उसकी टर्म डिनोट करते हैं तब हम ये नहीं करते कि हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साइन को एलिमिनेट कर देते हैं। ये बेसिकली क्या लिखा है, +2x² +y² -3xy एंड +4। अब हम प्लस को डिनोट नहीं करते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू को बट डिनोट करते हैं साइन के साथ, ये बताने के लिए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसकी टर्म के पहले माइनस है तो while writing the terms of that algebraic expression you need to include that sign. Okay, thank you.